আজ ইরান ইসরায়েল যুদ্ধের 10ম দিন, আর তারই মধ্যে এবার এই যুদ্ধ পরিস্থিতিতে সরাসরি এন্ট্রি আমেরিকার। বিজেন্দ্র সিং আমাদের প্রতিনিধি এই মুহূর্তে আমাদের সঙ্গে টেলিফোন লাইনে রয়েছেন। বিজেন্দ্র, এর আগে আমরা দেখেছি যে ইসরায়েল বারবার চেয়েছে এই যুদ্ধে সরাসরি অংশ নিক আমেরিকা, তাদের পাশে এসে দাঁড়াক। এই নিয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য ডোনাল্ড ট্রাম্প তিনি 2 সপ্তাহ সময়ও চেয়েছিলেন, কিন্তু ইতিমধ্যেই আমরা দেখছি যে সরাসরি যুদ্ধে জড়ালো আমেরিকা। হ্যাঁ মাধুরী, 2 দিন আগে তিনি বলেছিলেন 2 সপ্তাহ মধ্যে তিনি সিদ্ধান্ত নেবেন কি আমেরিকা ডাইরেক্টলি ইরান যে যুদ্ধে চলছে সেটাতে ইনভলভ হবে কি হবে না। তারা মদত করছিলেন ইসরায়েলকে, আমেরিকা থেকে মদত করা হচ্ছিল ইসরায়েলকে ডিফেন্ড করার জন্য যখন ইরানের তরফ থেকে অ্যাটাক করা হয়েছে তাদের দিকে। কিন্তু সরাসরি আমেরিকা জড়িত হবে কি হবে না সেটা নিয়ে একটা ধোঁয়াশা ছিল, কেন কি ডোনাল্ড ট্রাম্প বলেছিলেন তাদের কাছে অনেক বিকল্প রয়েছে এবং তিনি সব অপশনসগুলো ওপেন রেখেছেন। 2 সপ্তাহের মধ্যে তিনি সিদ্ধান্ত নেবেন, কিন্তু 2 দিনের মধ্যে দেখা গেল গতকাল থেকেই এরকম একটা ইঙ্গিত পাওয়া যাচ্ছিল ওয়াশিংটন থেকে, যখন তাদের যে স্থিত বম্বারগুলো রয়েছে সেটা আমেরিকা থেকে রওনা দিয়েছিল একটা অনির্দিষ্ট জায়গায়, সেখানে তারা যাবেন, তখন থেকে একটা ইঙ্গিত পাওয়া যাচ্ছিল হয়তো আমেরিকা সিদ্ধান্ত নিয়েছে। এবং সেই সিদ্ধান্ত কথা কিছুক্ষণ আগে ডোনাল্ড ট্রাম্প তার যে ট্রুথ সোশ্যাল নেটওয়ার্ক রয়েছে সেখানে তিনি পোস্ট করে জানিয়ে দিয়েছেন কি আমেরিকান স্থিত বম্বার 3 জায়গায় তারা যে পরমাণু নিউক্লিয়ার রিঅ্যাক্টরগুলো যেখানে এনরিচ করা হয় ইরানের মধ্যে, সেই 3টে ঠিকানাতে তারা অ্যাটাক করেছে। এবং এই স্থিত বম্বারগুলো যেটা ইসরায়েলের কাছে নেই সেটা শুধুমাত্র আমেরিকার কাছে রয়েছে, এবং সেই বম্বারগুলোকে ইউজ করা হয়েছে বিশেষ করে ফর্দো, যেখানে ইউরেনিয়াম এনরিচ করা হয় এবং যেখানেই মনে করা হচ্ছিল সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ নিউক্লিয়ার সাইট রয়েছে ইরানের, যেখানে তারা নিউক্লিয়ার বোমা বানানোর জন্য প্রস্তুতিগুলো নিচ্ছে এবং সেটাকে ধ্বংস করা হয়েছে। কিছুক্ষণের মধ্যে যখন অ্যাড্রেস করবেন ডোনাল্ড ট্রাম্প তিনি আরো বেশি ডিটেলে জানাবেন, তবে ইরানের তরफ থেকেও আনুষ্ঠানিকভাবে কিছু ঘোষণা होते चले কিছুক্ষণের মধ্যে। जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक जैसे अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि 3 जो न्यूक्लियर साइट्स हैं ईरान की, जो मुख्य ईरानियन जो न्यूक्लियर साइट्स हैं जिसमें फार्दो है, इस्फहान है और साथ ही नताज है, इन तीनों पर जो अटैक किया गया है और इन पर जो अटैक किया गया है वो B-2 बॉम्बर जो स्टील्थ एयरक्राफ्ट है अमेरिकन फोर्सेस का, उसने इस्तेमाल किया है। इसके जो बॉम्ब्स है, जो GBU बॉम्ब्स का इस्तेमाल किया गया जिसे मदर ऑफ ऑल बॉम्ब्स कहा जाता है, उन्होंने 90 मीटर, क्योंकि ये जो नतांज और फार्दो की जो न्यूक्लियर साइट्स हैं ईरान की, ये 90 मीटर नीचे है, जमीन के नीचे है। तो ऐसे में जो इजराइल के जो बॉम्ब थे या इजराइल के जो अटैक थे वो वहां तक नहीं पहुंच पा रहे थे, इसीलिए इजराइल ने अमेरिका की मदद ली और ईरान की इन 3 न्यूक्लियर साइट्स पर B-2 बॉम्बर्स ने, जिन्हें B-2 स्प्लिट बॉम्बर्स भी कहा जाता है, उन्होंने इस पर अटैक किया। जो रात के वक्त किया उन्होंने, बीती रात जो किया है उन्होंने 3 जगह पर अटैक किया। जो ये फार्दो और जो नतांज जो न्यूक्लियर साइट्स है, यहाँ पर ये कहा जाता है कि ईरान जो है न्यूक्लियर एनरिचमेंट, यूरेनियम एनरिचमेंट का काम यहाँ पर कर रहा था। और साथ ही जो इस्फहान जो न्यूक्लियर साइट्स हैं वहाँ पर जो यूरेनियम का स्टॉक पाइल है, यानी कि वहाँ पर रखी जाता है, यूरेनियम को रखा जाता है। जो यूरेनियम एनरिचमेंट का जो काम होता है वो परमाणु हथियार यानी कि न्यूक्लियर वेपन्स बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इस तरह के आरोप ईरान पर लगते रहे थे, इसीलिए जो अमेरिका ने जो है वो अटैक किया इन तीनों साइट्स पर किया है। इन तीनों साइट्स पर काफी नुकसान हुआ है, जिसके अभी तक जो अनवेरिफाइड वीडियोस भी सामने आने लगे हैं कि कितना बड़ा जो है हमला वो अमेरिका ने किया है। इस दौरान जो B-2 बॉम्बर्स थे उनके साथ एस्कॉर्ट कर रहे थे अमेरिका के ही F-22 रैप्टर्स, जो कि स्टील्थ एयरक्राफ्ट है, यानी कि इनविजिबल जो एयरक्राफ्ट होते हैं जो दुनिया की किसी रडार में पकड़ में नहीं आते हैं, उन्होंने ये अटैक किया है। और जैसे ही ये लग ही रहा था 1 हफ्ते से, हालांकि जो व्हाइट हाउस है उसने कहा था कि 2 हफ्ते का समय लिया है, 2 हफ्ते बाद डिसीजन लिया जाएगा, लेकिन वो सिर्फ ईरान को डिसेप्शन करने के लिए था, डिसीव करने के लिए था, ईरान को जानकारी ना मिल पाए कि कब अटैक होने जा रहा है। लेकिन जैसे ही वाशिंगटन DC के करीब जो डूम्सडे प्लेन है अमेरिकी राष्ट्रपति का, जो US डिफेंस फोर्सेस का, वो आया था, तब ऐसा लगने लगा था कि अब जो है अमेरिका इस जंग में कूदने वाला है, यानी कि इजराइल की मदद करने वाला है, क्योंकि इजराइल जो है अपने दम पर अकेले वो ईरान का मुकाबला नहीं कर पा रहा था, उसका वेपन्स भी कम हो रहे थे, मिसाइल भी कम हो रहे थे। ऐसे में जो अमेरिका में इस जंग में, यानी कि मिडिल ईस्ट की जंग में, वो इसमें अपना दखल दिया और यहाँ पर 3 साइट्स को अटैक कर दिया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अब शांति आ सकती है, लेकिन ईरान का अभी क्या रिएक्शन रहेगा, क्या वो जवाबी कार्रवाई करेगा, इसकी निगाहें पूरी दुनिया की लगी हुई है इस दौर। बहुत शुक्रिया नीरज जी।